بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذی یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو برا بلا کہے تو کہو فقولوا، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت۔ اور حضرات محترم جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا پھر اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور پھر جس نے مجھے دیکھا اس کو جس نے دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کو تو ویسے ہی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، اتنی شان ہے صحابہ اکرام کی۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے، حضرت بریدہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ قیامت کے دن وہ جس جگہ سے اٹھایا جائے گا وہ اس جگہ کی قائد کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن مکفل سے روایت ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا، اور پھر فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور پھر فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اسے اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ محبت صحابہ در حقیقت محبت رسول ہے، اور بغض صحابہ در حقیقت بغض رسول ہے، اور صحابہ کو اذیت دینا در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا در حقیقت اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اذیت کی اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، یعنی اللہ اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا
खैरात करेगा तो वो मेरे सहाबा की एक मुठ जो खैरात करने के बराबर भी नहीं। और मैं तुम में से कोई ओझ पड़ा पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे तो मेरे सहाबा की एक मुठ जो खैरात करने के बराबर भी नहीं। इतनी शान है सहाबा इकराम की। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत अवैस करनी मैं आपको बताता चलूं, आप वो शख्स हैं जिनके अलकाबात खैरुत ताबीन है। आपके अलकाबात में से आपका लक़ब इमाम ताबीन है। आप ताबीन में से सबसे अफसल है। आप ताबीन के इमाम हैं और आपका मुकाम मर्तबा इतना है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे दुआ करवाई। हजरत सैयदना उमर फारूक आपकी दुआ पर आमीन कहते। वो हजरत अवैस करनी सच्ची आशिक रसूल जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर आपका हुलिया बयान कर दिया, जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे आपकी तमाम सूरत बता दी कि आप कैसे थे। वो वैसे करनी इतना बुलंद मुकाम मर्तबा होने के बावजूद, खैरुत ताबईन होने के बावजूद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि हजरत अवैस करनी हजरत वहशी बिन हरब के पहले मुकाम को भी छू नहीं सकते। और हजरत वहशी बिन हरब कौन? वो सहाबी जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ईमान लाने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। और फतह मक्का के मौका पर जब ईमान लाए तो हुजूर ने माफ फरमा दिया और फरमाया कि आइंदा मेरे सामने ना आना। आप वो सहाबी है जिन्होंने चेहरा रसूल सिर्फ एक मर्तबा देखा है, सिर्फ एक मर्तबा चेहरा रसूल देखा है। और इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं कि खैरुत ताबईन हजरत अवैस करनी खैरुत ताबईन होने के बावजूद हजरत वहशी बिन हरब के पहले मकाम को भी नहीं छू सकते। इतना मुकाम मर्तबा है सहाबा इकराम का कि हजरत अवैस करनी हजरत वहशी बिन हरब के पहले मुकाम को भी नहीं छू सकते। और आज मैं जिस सहाबी का जिक्र करने लगा हूं वो तो बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं और कातिबे वही हैं। हुजूर ने आपको अपना कातिबे वही मुकर्रर किया और आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मोहतरम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी शान है कि आपके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कुतुब सियासिता में मौजूद है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जालहु हादिया व महदिया वाक़ी अज़ाबंदा, अल्लाह इसको हदायत याफ्ता भी बना और हदायत देने वाला भी बना और इसको अज़ाबे कब्र से बचा। वो हजरत अमीर मुआविया जिनके बारे में हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ला तज़कुर मुआविया इल्ला बिखैर, फरमाया तुम मुआविया का जिक्र ना करो मगर खैर के साथ। फरमाया हजरत अमीर मुआविया का जिक्र जब भी करो तो खैर के साथ करो। वो हजरत अमीर मुआविया और जितनी फतुहात सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है उतनी ही फतुहात सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, अगरचे वो समुद्रों में है। और आपको पता है इस वक्त अमेरिका और यूरोप का पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। उसकी वजह यह है कि उनका समुद्रों पर कंट्रोल है। जिसकी चाहते हैं नाकाबंदी कर देते हैं, जिसको चाहते हैं कहते हैं कि तुमने इन हदूद से बाहर अपना जहाज नहीं निकालना। तो जिस शख्स ने सबसे पहले समुद्रों पर कंट्रोल किया वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपने बहीरा रूम तकरीबन सारे का सारा फतह किया, उसमें जितने ममालिक जितने जजीरे थे वो आपने फतह किए और चारों तरफ जो बंदरगाहें थी रोमियों की उनको फतह कर कर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोमियों की कमर तोड़ कर रख दी। इतना बड़ा एहसान किया आपने उम्मत मुस्लिमा पर। और हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने पूछा, सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने पूछा कि हजूर आप अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? आपने फरमाया तू उस शख्स के बारे में मेरे से पूछता है जो अमीरुल मोमिनीन ही नहीं
मोमिन ही नहीं, साले ही नहीं, बल्कि फुकहा में आला दर्जे के फकीह हैं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया। और इसके अलावा मुत्तफिक हदीस है, हजरत अबी मुलाका से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्बास से अर्ज की कि हुजूर हजरत अमीर माविया जब भी जिक्र पढ़ते हैं तो अकेले पढ़ते हैं। तो फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, तू इनकी बात कहाँ से ले गया, तू इनकी बात छोड़ दे। तो मैंने अर्ज की, हुजूर मैं इनकी बात क्यों छोड़ दूं? तो फरमाया, इन्नहु कद सहाबी, क्योंकि वो सहाबी है। और हजरत मोहतरम हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा, फुकहा के इमाम, सूफियों के इमाम, मुहद्दिसों के इमाम, इमाम आजम के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने जब पूछा कि हुजूर बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है कि अमीर माविया अफजल है? मैं आपको बताता चलूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज कौन? दूसरी सदी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, और इस्लाम के 6वें खलीफा माने जाते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। इनके दौर में हजरत उमर का दौर वापिस आ गया। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके दौर में शेर और बकरी एक जगह से खाना खाएं, इतना अमन उनके दौर में, वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको खुलाफाए राशिदीन में शामिल किया जाता है, जिनको खिलाफत राशिदा के मनसब पर फाइज होने का एजाज हासिल है, वो उमर बिन अब्दुल अजीज। जब पूछा गया अब्दुल्ला बिन मुबारक से उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है कि अमीर माविया अफजल है? तो फरमाया कि हजरत अमीर माविया ने हुजूर के साथ जो जिहाद किया, वो जिस घोड़े पर सवार हुए उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि जिस घोड़े पर हजरत अमीर माविया सवार हुए उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस मिट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इतना मुकाम व मर्तबा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और इमामुल औलिया कुतुबुल अफ्ताब शेख सुबहानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी शेख कुल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं अमीर मुआविया के बारे में? आप फरमाते हैं कि अगर मुझ मूसा साले जंगी दोस्त के बेटे को यह पता चल जाए कि क़यामत के दिन हजरत अमीर मुआविया ने कहां से गुजरना है, तो मैं वहां पर पहले से ही डेरा लगाकर बैठ जाऊं और हजरत अमीर मुआविया वहां से गुजरे और उनके घोड़े के कदमों से जो धूल उड़े वो मेरे सर की मांग बन जाए। मैं मूसा साले जंगी दोस्त का बेटा इसको अपने लिए फजीलत का बाइस समझूंगा। यह हजरत हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि आपके घोड़े की धूल मेरे सर की मांग बन जाए, मैं इसको अपने लिए फजीलत का बाइस समझूंगा। इतना मुकाम व मर्तबा है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और हजरत मोहतरम आपसे 163 अहादीस रवायत है और आप से कई सहाबा इकराम ने अहादीस रवायत की। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे कई अहादीस रवायत की और खुद हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा के बड़े फर्जंद लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई अहादीस आपसे रवायत की और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कई अहादीस आपसे रवायत की और हजरत नौमान बिन बशीर ने 5 अहादीस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की। और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कातिब वही मुकर्रर किया। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की वही जो है वो लिखते थे। और हजरत मोहतरम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब तक तो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान तनाजु रहा तब तक तो हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बरहक मानते हैं, लेकिन जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली तो उस सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत भी बरहक है। हम अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।